Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. I'm Nauroz Sikandar Junaid Dani, and I've been into fitness for almost 14 years. Today's guest is Dr. Anila Khan, who's a psychologist and a speech therapist for both adults and children, with a slight twist. And the twist is, and that was my first question that I asked her, is that she is actually autistic herself and also has ADHD, which is attention deficit disorder, both coexisting simultaneously within her. तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन थी बट अ बिट अबाउट हर फर्स्ट शी बेसिकली अदर देन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हैज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स, two of which are a neurodivergent community for Pakistan, and she also has a global support group called Bridges Global Community for Autistic Adults. She also is working on a few projects, one of which is very interesting. It's recovering from childhood abuse and trauma, basically covering domestic abuse and trauma for a lot of children, specifically females in our society, because this is something that's very overlooked, or isko dhaka jata hai. So we talked about the autism spectrum because she can not only talk about it with reference to her patients, but she can talk about it with reference to herself and her journey as well. So we talked about what autism is exactly, कब बच्चों में इसका ऑनसेट नज़र आना शुरू होता है, how we can identify autism within children as well as within adults as well. We talked a bit about her journey of self-reflection and self-realization of discovering that she has autism and ADHD as well. We talked about the different methodologies that are used nowadays, or quite frankly, just one major methodology, the traditional methodology that is used in psychological medicine and psychological therapy today. We talked about how a quote-unquote normal mind is different from a quote-unquote जो हम आम माशरे में बोल देते हैं abnormal, but which is actually called neurodivergent mind, जो कि different तरीके से सोचता है और different तरीके से उसकी brain development जो है होती है. So if you like the podcast, do click on the like button. उससे होगा क्या कि वीडियो की रीच जो है वो बढ़ेगी टू द राइट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ ऐसा बना हुआ है. इसके अलावा इफ़ you'd like to see more physical fitness as well as mental fitness and self-improvement podcast and conversations, please do subscribe to the channel and let me know in the comments what you think of the podcasts, और किस तरह की conversation आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, किस तरह के सवालात आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, and potentially किस तरह के guests आप देखना चाहेंगे going forward. For example, this one is more in line with our self-improvement and mental fitness aspect of our podcast series. और इसके अलावा हमारे जो international listeners हैं, they can listen and watch this podcast on Spotify as well, so you have that option as well. And with that, let's move on to our conversation with Dr. Anila. Dr. Leena, welcome. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. How are you? I am good as well. बारिश हो रही है. Yes, a lot of rain is happening. Yes. तो मैंने तो सुना है कि मेरे ख्याल है मंडे तक चलेगी बारिश. But क्या करें? We have to do, और रमज़ान भी आ रहा है, so there's a lot of events coming. And specifically for the work that I'm doing about disabilities advocacy. So there are events are coming. Yeah, आपकी प्रोफाइल में ना मैंने देखा था, लिखा हुआ था #actuallyautistic. क्या मतलब? What does that imply? Oh my God. That is something people ask. Actually, that's some I still don't talk about the aspect of me being autistic or me being ADHD. So if somebody is autistic or somebody is somehow ADHD या किसी capacity में होता है, तो then they use the word actually autistic. That is a hashtag. So that is hashtag for those people who want to understand that. For rest of the people, maybe they might not get the idea that person is also autistic. So you are? Yes, I am. Actually autistic? Yes, I am autistic and I'm ADHD also. Okay, and when was this diagnosed? It's kind of a late diagnosed thing. Acha. After even when I was working, it's been like more than like I spent 12 or 13 years in the field, then I get the idea that I'm also autistic. Oh, okay. So I thought that maybe that is why you went into this field. लेकिन ऐसे नहीं है. No, that is totally accidental thing. अच्छा. That is a destiny, you can call it. अच्छा. So शायद मैं understanding मेरी develop भी इस वजह से हुई थी कि somehow my brain is also neurodivergent brain.
And that was quite unexpected actually that you will ask that question from me. अच्छा. Because S&P वाली जो थी उसमें they were asking me and I was not able to get the idea because they were not asking the direct question from me. अच्छा. When the director said, yeah, you asked this direct question. Yeah. I was not ready by the way. It's okay. But yeah, it is. तो आपने बोला you have a neurodivergent mind. क्या मतलब इसका? Okay, neurodivergent. You know, when you have because you said that you have some working experiences or you have some podcast experience with people who have a mental health background, let's say. So you might have learned them or you might have listened them saying that के normal और abnormal. नॉर्मल नहीं है ये abnormal चीज है, नॉर्मल लोग इस तरह से करते हैं या लेमैन में भी we say that लेमैन में कहते हैं, नॉर्मल लोग कहते हैं, ठीक है, उनमें भी वो abnormal ज्यादा लफ्ज यूज करते हैं या एटिपिकल ज्यादा लफ्ज यूज करते हैं. बट the thing is that in our world, the world of the neurodiversity, we use the word neurodivergent and neurotypical brain. So neurodivergent brain is different and neurotypical brain is different. Neurotypical brain is most of the society, let's say, and from neurodivergent mean that you have a specific way of functioning. So you cannot function the way the rest of the society is working. Right. So let's say in a lot of society there are certain different things जो कि आपको नजर नहीं आ रही. मतलब there are unwritten rules which you cannot understand sometimes. So if you will not say something to me, I'm not going to understand that. How could I understand that thing? Because it's not in front of me. Yeah. That hypothetical thing which you would expect from me. ठीक है. So we don't do that. Yeah, वो लोग इस तरह से नहीं करते. And the other thing is that people have certain way of dealing certain ways in different ways. We don't do things in that way. The development is not. It's not less. I would say that it's never about less. It's about a different. Way. Yeah, it's a different way. तो आम आदमी की लैंग्वेज में जो वो नॉर्मल और एबनॉर्मल कहते हैं उसको न्यूरोटिपिकल एंड न्यूरोडाइवर्जेंट. ठीक है. एंड डाइवर्जेंट डजंट नेसेसरली मीन कि कोई ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई स्लोनेस है कुछ है. वो अब इसमें ऐसा है कि सम हैव पीपल हैव एडेड डिप्रेशन भी इसमें डाल दी, एंजाइटी भी इसमें डाल दी है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कर दी हैं. बट when I was studying at that time I was not able to understand many things because even I was somebody met me yesterday and they were asking me how you get to know those so many things and stuff like that. I said I always have a curious brain, not going to sit until I understand a thing fully. Okay. That is the reason that why I'm able to maybe master many things. Yeah, because of the curiosity, getting into things, to know things and clearing my concept. वो चीज़ उसके साथ करने की वजह से चीज़ें आई हैं. But people still need to understand that के एक चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, वो उससे उनको डर लग रहा है. And that is making them afraid of so many things. Because that curiosity, that hyper focus in terms of ADHD language, या special interest in terms of autism language. So ये चीज़ें उनको थोड़ा परेशान कर देती हैं कि ये बंदा कैसे उस चीज़ में इतना से करे. You don't understand that we might need to put more effort to do a lot of things. Let's say. So for example, if you see me coming here, it took me a lot of time to know the whole place. That was my neurodivergent brain working. सही. Because of the rain, that was an unexpected thing. So बहुत सारी चीज़ें आज वैसे भी unexpected हो गई हैं. ठीक है. That give me somehow some anxiety somehow what I'm going to do for the rest of my day because my day is planned. So it started off that way, तो you like पता नहीं पूरा दिन इस तरह ना गुजरे. No, it's like what I'm going to do because I cannot sit just like that. Okay. You know, because I need to do something. ठीक है. Plan things. Right. One thing, another thing. So it's like that. So I cannot like gaps. I cannot sit just like that. अच्छा सही. I have to do something to feel like that I'm doing something. Right. Okay. अच्छा आप थोड़ा सा माइक को अपने करीब कर लें and मुझे अब आप ये बताएं before we get into everything, starting off with के what exactly is autism and the autism spectrum? क्योंकि इसमें बहुत मिसकंसेप्शंस हैं. लोग समझते हैं ऑटिज्म वो है जो बच्चा जो है क्लियरली नजर आ रहा है कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट स्लो है या फलाना ढमकाना. Basically when we talk about neurodiversity or not neurodiversity, specific neurodivergent brain या neurodivergent people, it is basically coming from hidden challenges. Hidden challenges. For example, my challenge would be sleep issues. ठीक है. My challenge would be needing something right now. Just for example, the moment I came, I asked for coffee. That was also my way to get comfortable. Okay. People would say that addiction that is a very far away thing. Addiction है कि नहीं? That's a very far away thing. But I like to have coffee. Let's say. Now the second thing is that when you talk about autistic people, you would see that they are just doing fine in so many things and how they have challenges. So we basically say that it's a hidden challenge.
only thing, let's say that, or the thing that you can identify, you would identify maybe, people think that about in terms of a discussion of language, कि language develop में बहुत सारे लोगों की language भी develop है, let's say, okay, language तो develop होगी है, then they will talk about eye contact नहीं दे रहा, eye contact शायद लोग भी नहीं देंगे, और ना, you know, वो भी नहीं देंगे, शायद लोग नहीं देंगे. फिर बहुत सारी चीज़ें जो न्यू डाइवर्जेंट पीपल कर रहे होते हैं वो न्यू टिपिकल पीपल भी कर रहे होते हैं, they are also doing the same thing. लेकिन आपको क्यों नजर आ रहा है? Because of them not being able to get comfortable in certain places, you know, because have the curiosity in the brain कि क्या, क्यों, किस लिए, किस वजह से है. So that brain, that firing brain is not letting you sit in one place to have the curiosity what is happening over there. क्या क्या है यहाँ पे, क्यों है, किस लिए है. So that is something like that. So that's a very curious brain. इसमें जो न्यूरॉन्स है बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होंगे और वो आपको स्टिमुलेशन और उसका जवाब चाहिए होगा उसको. ठीक है. So that is something it is all about, and there are different theories about that. But let's say कि for people, if you say that कि अगर कोई पूछता भी है कि कैसे पता चल रहा है कि ऑटिस्टिक है क्या नहीं है, just say one thing which I don't like to say about children कि आप किसी और children से compare करें, but just giving a simple idea कि क्या आपने देखा था कि the child started talking at the age of 2, let's say, because we have developmental milestone. Autism is basically a neurodevelopmental condition. It's not even a disease. People call it disorder, but let's say it's a neurodevelopment condition. And there's 2-3 certain things which have been written in our textbook that is called DSM-4, 5, or let's say DSM-TR, जिसके according we are just following the criteria to diagnose some disorders. It's not just about what it is. We diagnose our disorder according to DSM also. So for somebody, language develop नहीं हो रही या थोड़ी सी delay होगी, and sometimes people get the language. And sometimes the developmental milestones, like for example, walking, crawling, giving the social smile, standing, those things are on time. And people develop even language too. But sometimes they regress. They just go back in their own world when they hit the age of 3. Achha. Yeah, when they hit the age of 3. So now we can, thanks to pediatric foundations, those are working worldwide. Now they have a separate developmental criteria. New developmental criteria have came, where they are now talking about some early intervention signs too. Not early intervention, not early signs too, that you can detect in the child, just to make you maybe alert. Not getting परेशान कि आप परेशान हो जाएं, alert हो जाएं कि हो सकता है ये चीज़ उसके अंदर हो. Because remember that it's not something that somebody have less. It's more like the child is going to develop in a different way. Develop in a different way in terms of the understanding of the brain. कि वो जो वर्ल्ड उसके इर्द गिर्द है वो डिफरेंट तरीके से देखेगा उसको. बट अगर आप जस्ट एक मिनट के लिए सोचें, क्या पूरी दुनिया अलग नहीं है? Like every person is different. Yeah. And our study from psychology started from individual differences. The individual differences is the main thing that grow this field of psychology. Okay, that is the individual difference. So this is all about. सही. इसमें लेट्स कम बैक टू चिल्ड्रन लेटर. मेरे बीच में एक सवाल आया था, आपने मेंशन किया था कि द एबिलिटी टू नॉट फॉल असलीप. एंड आई नो कि काफ़ी लोग जिन्होंने जब ये सुना होगा उनको होगा कि ओए मुझे भी नींद नहीं आती, मेरे में तो ये ट्रेट्स तो नहीं है. एम आई ऑल्सो न्यूरो डाइवर्जेंट, डू हैव अ न्यू डाइवर्जेंट ब्रेन. शाय वाली बात आपने बता दी कि आई कॉन्टैक्ट अगर नहीं हो रहा तो वो तो मतलब कि आम सोसाइटी में हर एरे गरे के पास ये होता है. The thing is that कि जैसे आप अभी, मैं सॉरी आपको कट करूँगी क्योंकि एकदम से अगर कोई पूछेंगे तो एकदम से I cannot maybe pinpoint the signs because my way of discussion is to give you the real life context also. ठीक है. So it's about play too. The child don't want to play या cannot play या is not understanding the way of other people. सही. ये play भी different type का होता है. हमारे तो खेल कूद है ना, it's pretended play, it's different kind of play. That how your parallel play है, pretended play है, you know what kind of play you are doing. So the child you would see कि बच्चा अलग से बैठा हुआ है. लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे बच्चा अलग से नहीं बैठता क्योंकि फैमिली गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है. तो चाइल्ड इज एबल टू डेवलप दोस्त, तो वो चीज़ उसके अंदर छुप जाती है. सही. सो फॉर अस दैट टर्मिनोलॉजी इज मोर काइंड लाइक अ मास्किंग. द चाइल्ड इज लर्निंग टू मास्क. सो आई जस्ट हर्ड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि एक ऑटिस्टिक बंदे का अवार्ड हमें देना चाहिए ऑस्कर का कि वो हर रोज न्यूरोटिपिकल लोगों की तरह परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मास्किंग ऑन डेली बेसिस. सही. सो दैट इज समथिंग इट इज अबाउट लाइक दैट कि हम अगर दिल नहीं भी चाह रहा तो हमें सोशल सिचुएशन की वजह से वो चीज़ करनी पड़ रही है. ठीक है. सो इट्स मोर लाइक दैट एंड इट्स नॉट दैट कि हम जानबूझ के कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेरी सेंसरी प्लेस, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन है यहाँ पे, बहुत कुछ है यहाँ पे, लाउड भी हो सकती है, कम भी हो सकती है.
आज लोग नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लोग होते तो शायद डिस्कम्फर्ट का लेवल ज़्यादा होता. लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग गिविंग वन एग्जांपल. अभी स्टूडियो में आप क्या आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टूडियो. ठीक है. एंड लेट्स से आई समहाउ नो यू, आई टॉक टू यू, सो नाउ इट्स अ कंफर्ट लेवल फॉर मी. इवन देन आई एम टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑन डेली बेसिस, you know, but that is a different context. वो work के context में, this is not a work context, it was a podcast kind of a context. Yeah. So it was a new context for me too, let's say. So that could also create anxiety for me. That is a new place. Even I'm quite familiar of Islamabad. I know Islamabad a lot. I know Afghan a lot because I was working here. My siblings were studying here. I just live my whole life over here. But even then, there are certain things that can give me anxiety. So when you look toward children, शायद लोगों के साथ ना खेले, अपनी दुनिया में रहे, बाकी बच्चों की तरह ना बोले. you would see those children very much obsessed with jingles, you know, वो जो इश्तिहार के jingles होते हैं, you know, obsession with numbers, obsession with ABC. और obsession with number और ABC इसलिए भी है, jingles के साथ इसलिए भी है, songs के साथ, poems के साथ इसलिए होती है कि वो हमेशा सेम रहती हैं. Word are ABC is a universal thing. 1 2 3 is a universal thing. It is not going to change. Shapes are universal thing. It's not going to change. It will remain same always. Songs are same. Music are same. It is going to remain same. Same is true for poems. It is going to remain same. So that sameness is bringing a lot of comfort to us. Then we call something called stimming. Stimming is a behavior that a child or adult would do to make him or herself comfortable. समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो रही है. Stimming? Stimming. Not stammering. Stammering तो हल्कलाना होता है ना, ये बच्चे stammer भी कर सकते हैं. But I'm saying this is a word called stimming. Stimming, okay. Stim is a thing that it could be a vocal thing, it could be a verbal thing, it could be a rapid eye movement हो सकती है, it could be thinking about something again and again, it could be a listening a song again and again, it could be a playlist listening from 10 times in a day, let's say, या 7 साल से एक ही आप playlist सुन रहे हैं, या you're watching same movies. For example, I like a lot of superhero movies, so I watch them. Star Trek हो गया, Star War हो गया, Marvel, DC, I like those movies, so I will watch them. Oh, great. One way or other way. Let's say, like, I know boys like them a lot, but it is... example दे रही थी. Yeah, but even then I like it. It's my, you can say that it's my interest. I love to watch those movies. सही. And it's also giving me somehow, you know, keeping you back in the track. So that is something like that. Interesting. Yeah, it's interest. So these people are more resistant to change, anxious about change. Yeah. Autistic people are. Things that they cannot predict. Yeah, they cannot predict. It makes them anxious. Because anxiety is something that is unpredictable, coming from unpredictable things. And in general, anxiety is also about that. If you look toward the anxiety. So if somebody is an autistic person, they can have depression and they can have anxiety too. They can have those tendencies too. Right. Yeah. So even when I was talking about sleep, let's say कि एक बच्चा पूरा दिन नहीं सो रहा, या बच्चा उस टाइम सो रहा जैसे आप जिस टाइम आप नहीं सोते, या let's say कि if child sleep early, the child is not able to sleep late, and let's say we are talking about not a child who is acquired, we are talking about a child who have a lot of energy. It means that child is going to make awake that whole family for whole night, let's say. सही. And around which age आप ये बात कर रही हैं? और ये मतलब from childhood ये चीज़ें हो सकती हैं. अच्छा. Sleep issue हो सकते हैं. The child can have issue with the food. Sensory sensitivities हो सकती हैं, gluten से हो सकती है, casein is basically in milk products. Gluten is in गंदम, या वो जैसे होता है ना white आटा जैसा होता है, refined वगैरह जो चीजें होती हैं, it's because it's basically an enzyme, a body cannot digest that. Right. So it can get issues for you. फिर कुछ vegetables से हो सकता है, ठीक है, विटामिन सी से हो सकता है. सही. अब ये जो स्लीप वाला आपने मेंशन किया, ये तो बच्चों का तो ये तो होता है मसला, बट एट व्हाट पॉइंट डू यू रियलाइज कि नहीं दिस इज नाउ बिकमिंग more towards this side, जिसको हम एग्जामिन करा लें? You know, the thing is that if you look toward the sleep, अच्छा sleep, अब एक और चीज़ आपने याद रखनी कि ये चीज़ें और लोगों में भी हो सकती हैं. स्लीप का इशू जिसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है उसको भी हो सकता है, या और उसको भी हो सकता है, बच्चा बीमार इस वजह से भी हो सकता है. बट इफ़ यू सी दैट आवर चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्लीप, नॉट एबल टू फॉल स्लीप, या स्लीप बहुत कम है, या सब लोगों को जगा रहा है, और 1 दिन 2 दिन तो समझ आती है, लेकिन आप 2-3 दिन महीने की चीज़ हो रही है, यू नो, और सब बाकी से, क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं, आपने एक क्लस्टर देखना उस चीज़ का. एंड लेट्स से इफ अ चाइल्ड इज नॉट लाइक, एक और चीज़ होती है, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं आता. अच्छा, सही. क्योंकि इट्स नॉट जस्ट देम एंगेजिंग, इट्स आल्सो दे आर नॉट लेटिंग एनीबडी एंगेज इन देयर लाइफ आल्सो. जब नाम पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं वो आपकी तरफ देख नहीं रहा, एंड पीपल आर गोइंग थ्रू हेयरिंग टेस्ट, पीपल आर गोइंग थ्रू टेस्टिंग विद आईज, आई टेस्ट होते हैं, हेयरिंग टेस्ट होते हैं, जो कि बिल्कुल क्लियर आते हैं. सही. बिकॉज अगर हेयरिंग नहीं है तो यू कैन से दैट अ चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नेम. फिर सोशल स्माइल अगर नहीं है तो ये दीज आर सर्टन थिंग्स दैट विच कैन प्रिडिक्ट टू दोज थिंग्स. ठीक है. और समटाइम अगर ये चीज़ ना भी हो, बच्चा वर्बल है, अब चाइल्ड इज वेरी प्लेफुल, अ चाइल्ड इज नॉट सिटिंग
इन वन प्लेस, यू नो, फिर भी ये चीज़ें हो सकती हैं. सो इट्स अ वेरी क्लस्टर काइंड ऑफ, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग. तो जब लोगों को समझ नहीं आता, उनको डर भी इसलिए लग रहा है. और मे बी थैंक्स कहना चाहिए, नहीं थैंक्स कहना चाहिए, वी हैव सर्टन प्रोफेशनल्स अराउंड अस हु आर मेकिंग पेरेंट्स मोर मे बी अनकम्फर्टेबल, डरा रहे हैं, मेकिंग देम अफ्रेड कि आपने सिर्फ हमारे से ही थेरेपियाँ लेनी है और इधर नहीं जाना. यस्टरडे पेरेंट वर आस्किंग मी, वो कहते हैं इस 3 घंटे तो 3 घंटे इस बच्चे की थेरेपी और बढ़ा दें. अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि चिल्ड्रन की तो हमने बात कर ली कि उनकी डेवलपमेंट में वी कैन स्पॉट सर्टन थिंग्स. आपने मेंशन किया एक चीज़ नहीं होती, पूरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्लस्टर होता है. हाँ, दैट्स द वर्ड यू यूजिंग. अब एक एन अडल्ट दैट कम्स टू यू, how long does it take for you to realize कि अच्छा this person also has some autistic traits that have been undiagnosed? या आप अगर अपनी एग्जांपल दें तो वो जो था, आप कह लें कि टाइम पीरियड या वो जो था फेज, वो जर्नी क्या थी? अच्छा, माई जर्नी इज डिफरेंट बिकॉज आई हैव टू मास्क अ परफेक्ट थेरेपिस्ट. Mask like a perfect therapist. Masking, yeah. मतलब? Masking is something that you make a personality that is acceptable. That is a role. Achha, you are masking to be a perfect therapist. Yeah, I'm supposed to. If I'm not supposed to do that, then I was not a therapist. Because as a therapist, you have certain, you have to not show your emotions. Let's say, as a therapist, you cannot do certain things. You can have a clear boundaries of, like, there's a lot of things, let's say. थोड़ा सा रोबोट बनना है आपने. Yeah, you have to be a robot, let's say. Okay. And also have emotions but not that much empathy. As autistic, you have a lot of empathy. बहुत ज़्यादा empathy होती है. अच्छा. It's like I don't know about other people. Everybody could be different, but I can physically feel the pain of someone. Like body में कहाँ का pain feel हो रहा है. I don't know, but this is what I can do. I'm a hypersensitive person. अच्छा, मेरे तो ऑपोजिट ख्याल था. मेरे ख्याल था कि ऑटिस्टिक में एम्पैथी कम होती है. No, it's more like people, it's not empathy, it's more like कि जो emotions का जो वो है ना, like the way that you're showing the emotions, that is different. Let's say, right, I will not show something right now to maybe protect myself. Okay. You know, कि आप कैसे protect करें अपने आप को. So it will be more like that. So I'm protecting myself, not to show certain things, not to show emotions. या अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो I will not do that. This is how people are doing that. So emotions are there, but when you are becoming therapist, it's more like that. The content that is coming toward is coming from a neurotypical side. Okay. हाँ, वो उस तरह से आ रहा है आपके सामने. Traditional therapist. That's the traditional. ऐसे होना चाहिए. Traditional society side. Okay. इसमें and also that was a medical model also. अच्छा, आपको शायद पता हो, मैंने स्टार्ट में आपको बताया भी था इस बारे में कि मेडिकल मॉडल है वो वाला. बट एज इफ यू आर अ थेरेपिस्ट और नॉट अ थेरेपिस्ट थिंग, बट व्हेन यू लुक टुवर्ड अदर साइड ऑफ थिंग्स, लेट्स से एज अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज आई एम आल्सो साइकोथेरेपिस्ट. साइकोथेरेपिस्ट इज समथिंग लाइक कि एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थेरेपी जहाँ से थेरेपी स्टार्ट हुई थी. आई फॉलो दोज पीपल. ठीक है. उनकी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल फॉलो दैट. Also, एक Freud था, Jung था, so I like Freud but I also like Jung, so I'm going toward that side. और उसकी वो एक collective approach थी, वो दुनिया को collectively देखता था वो. कौन, sorry? Jung, Carl Gustav Jung. अच्छा, okay, ठीक है. And so when you're doing this, you should be not doing things. That is only a medical model. Medical model समझ नहीं आता. I mean, everything cannot be genetic. जैसे for example, autism is a neurodevelopmental condition. ठीक है. उसमें हो ये रहा है कि मेरे ब्रेन में जो न्यूरॉन ऐसे फायर हो रहे हैं. समटाइम कोई डिस्ट्रैक्शन आती है तो मेरा ध्यान उस तरफ चला जाएगा. तो अपनी जगह पे जाएगा, मुझे रिस्पॉन्स वहां से आएगा, लेकिन वो लेट भी हो सकता है. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. लोग कहते हैं कि जवाब नहीं दे रहे बच्चे, दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज एवरीथिंग इज देयर. दे विल रिस्पॉन्स व्हेन टाइम विल कम. Okay. Yeah, so it's more like that. So it's a medical model में दवाई की तरह देखते हैं आपके जहन को कि जहन में ऐसी चीज़ नहीं है. But when you look toward psychosocial side, so as a psychologist you need to look toward a psychosocial side. अब मैं क्यों psychosocial कह रही हूँ? अब अगर आपने शुरू में देखो I talk about myself कि मैंने white, brown and black community के साथ काम किया हुआ है. ठीक है. आपको मैंने बताई भी थी ये बात. एंड मैंने वो जो मिनीसोटा का वो था, मैंने आपको बताया था that I have talked about that over there too. And somehow I find a way to work with them. So हर कम्युनिटी में ना चीज़ें डिफरेंट है. कुछ कम्युनिटीज़ में, लेट्स इन आवर कम्युनिटी सर्टन थिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर बीइंग गर्ल एंड बॉय. कि लड़की नहीं बोलती बहुत अच्छी बात है, एशियन कम्युनिटी में बहुत अच्छी बात समझी जाती है.
लड़के अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर रहे, अच्छी बात समझी जाती है। अब आप अपनी कम्युनिकेशन अगर देखें, जो हमने बात स्टार्ट किया, हमने इसी से बात स्टार्ट किया ना, इमोशंस नहीं है लेकिन वो है तो सही, लोगों को नहीं लगता, बट दे आर नॉट शोइंग दोज इमोशंस, या लेट्स से वो वैसे नहीं शो कर जैसे न्यूरोटिपिकल सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है। राइट जैसे आपने मुझसे कोई ऐसी बात की जो कि शायद मुझे बुरी लगनी चाहिए थी, मैं उसके ऊपर खामोश हो गई। सो इट्स नॉट दैट कि मैं डर गई हूँ आपसे, इट्स मोर लाइक दैट कि आई जस्ट डोंट वांट टू एक्सप्रेस समथिंग ओवर हियर, या मे बी इफ आई विल से समथिंग वेरी ब्लंट व्हिच कैन नॉट मे बी टॉलरेट, दैट्स इट। ठीक है। तो इमोशंस, तो लड़के इमोशंस शो नहीं करते हैं। लड़के जो है ना बड़े माचो होते हैं, काम करते हैं, उनको तो सिर्फ गाड़ियाँ पसंद होती है, रोना नहीं है, अच्छा बेटा बनना है, घर वालों की खिदमत करनी है, सब कुछ करना है, और फिर रोना भी नहीं है, यू नो, लाइक नॉट शोइंग इमोशन। सो हमारी सोसाइटी ने उसको रिवॉर्ड कर दिया। एंड लेट्स अबाउट गर्ल्स, कि आपको पता है कि बहू जब देखी जाती है, जब बेटी देखी जाती है, लड़की देखी जाती है, खातून देखी जाती है, जवाब नहीं दे रही आगे से, बहुत अच्छी बच्ची है, सिर्फ सर झुका के काम करती है। एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आपको शायद होगा आइडिया दैट आई एम वर्किंग फॉर अब्यूज एंड ट्रॉमा टू, domestic violence too. Yeah. And why people are not able to come out of abusive relationship, that is one of the reasons. That they are not saying anything. Society pushed them not to say anything. So again, we are rewarding those symptoms. जो कि प्रॉब्लम का बायस भी बन सकते हैं और बन भी रहे हैं. Not just for neurodivergent people, but also for neurotypical people too. So these are part of somehow autism के traits भी हैं. But या personality का part भी हैं. But we are rewarding that. So हमारे यहाँ अलग चीज़ है. वेस्ट में अलग चीज़, वाइट कम्युनिटीज़ में अलग चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद समवन, मैंने कहा कि लेट्स से आई वांट टू डू सर्टन थिंग्स, आई वांट टू मे बी राइड बाइक, या मैं कुछ और करना चाहती हूँ, आई वांट टू लर्न कराटे, लेट्स से दिस इज एक्चुअली आई वांटेड टू डू दैट, दिस व्हाट आई एम सेइंग दैट। डिड यू लर्न? नहीं, आई डिडंट लर्न कराटे, साइकिलिंग तो आती है मुझे, बट आई डिडंट लर्न कराटे। अच्छा, सही। सो अगेन वहाँ लड़कियाँ कराटे नहीं लर्न करती ना, सो बिकॉज दैट आई एम आल्सो पख्तून टू, तो बहुत सारी चीज़ें तो उस वजह से भी हम नहीं कर सकते। सो उसने कहा हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, वी विल सी दिस प्रॉब्लम अदर वे अराउंड, यानी कि हमारे लिए ये चीज़ें हैं कि आई एम नॉट एबल टू डू दैट, मैं ये करना चाह रही हूँ। जो वाइट कम्युनिटीज़ है या ब्लैक कम्युनिटीज़ अब्रॉड है, वो तो ये सब कुछ कर सकती हैं, उनके क्या फिर वो है, देन दे हैव अदर प्रॉब्लम्स। वो फेमिनिज्म का प्रॉब्लम है फिर वहाँ पे, बात नहीं समझ आ रही, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ें वहीं से आ रही है ना यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट अलग, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, लेडी वॉस होनी चाहिए, वो नहीं उनको मिल रही। स्पोर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स में उनको सर्टन चीज़ें नहीं मिल रही, फिर वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बीच में, बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती है, फिर वहाँ पे जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाती है, बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, बिकॉज एक टाइम आता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सर्टन थिंग्स, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद पीपल स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स। सो वहाँ पे जो सिम्टम्स की सिम्टमोलॉजी जिसको हम कह रहे हैं, या एक्सप्रेशन है सिम्टम्स का, वो अलग है। सो हर सोसाइटी वाइज अलग होता है, रिलीजन वाइज भी अलग होता है। ओवर हियर दैट्स व्हाई साइको सोशल एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी इफ़ यू आर कमिंग, या लेट्स से XYZ इज कमिंग फॉर मी फॉर द थेरेपी थिंग, इवन इफ इट्स अ अडल्ट सेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल या 1-to-1 इंडिविजुअल सेशन है, फैमिली सेशन है, ग्रुप सेशन है, कपल सेशन है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, उसमें फिर ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। दिस इज व्हाट आई विल सी कि वो बैकग्राउंड क्या है, कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, चीज़ें क्या हैं। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई गिव यू द होल आइडिया ऑफ साइको सोशल एस्पेक्ट्स, कि वो इंपॉर्टेंट। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट यू हैव टू सी दैट, बट व्हेन आई वाज स्टडिंग, बिकॉज हमने बात वहाँ से स्टार्ट की थी, सो मेडिकल मॉडल मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं मेडिकल मॉडल के तरीके से चीज़ों को देख रही थी, और वैसे थेरेपिस्ट बनना है और वैसे ही करना है, और ये चीज़ें नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं कर सकते, एंड आई न्यू दैट थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू मी। अगेन आई हैव अ वेरी क्यूरियस ब्रेन। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माई वर्क, my trainer used to get very frustrated at the way that I was asking question, because things were not making sense to me. और वो फिर मुझे अभी समझ आएगी क्यों जो सेंस कर रही थी, बिकॉज हर एक वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, हर बच्चे पे नहीं हो रही। हाउ कैन यू अप्लाई अ थिंग दैट इज़ वर्किंग ऑन अ चाइल्ड हु हैव डेवलपमेंटल डिलेज, वो मैं, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, वो कैसे एक बच्चा जो है, जो कि जिसकी शायद इंटेलिजेंस अबव एवरेज है, जिसको समझ आता है हु इज़ स्मार्ट, हु इज़ इंजीनियरिंग स्मार्ट, कोई इंजीनियरिंग कर सकता है, वो डिफिकल्ट तरह के लेगो बना सकता है, उस पर क्या मैं किसी से कैसे अप्लाई करूँ, बिकॉज दैट चाइल्ड इज़ नॉट लेस स्मार्ट, उसको सब चीज़ें समझ आई, तो आई कैन नॉट अप्लाई दोज थिंग। तो दोज वर द क्वेश्चन, दोज वर द क्यूरियोसिटी दैट वाज इन माई ब्रेन, एंड दैट लेट मी टू अंडरस्टैंड या लर्न डिफरेंट थिंग्स, टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपिस्ट, टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेज। ठीक है। So that was my way to understanding, and still I was not able to understand my own self because I have to perfectly master so many things. That was the demand of the role too as a therapist. But I was not taking care of myself. I was there for a lot of people, but not understanding कि मेरी अपनी क्या needs है, because therapist की तो अपनी needs नहीं होती,
वो तो नहीं कर सकता, वो तो किसी से बात नहीं कर सकता, यू नो सम थिंग्स लाइक दैट. देन वी हैव टू फाइंड समबडी जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें कह सकूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स मे बी इन माई लाइफ दैट आई डिडंट टॉक टू अबाउट. फिर आप डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ अपने अंदर नजर आ रही हैं, यू नो लाइक डिप्रेशन भी नजर आ रहा है, समहाउ एंग्जाइटी भी नजर आ रही है, देन स्लीप के इश्यूज भी नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी, राइट, और चीज़ें नजर आ रही हैं. स्लीप डिसऑर्डर्स अपने अंदर नजर आ रहे हैं, इमोशंस के प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, यू नो थिंग्स लाइक दैट. फिर मे बी समहाउ इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स भी नजर आ रहे हैं, बिकॉज एज अ neurodivergent person you could be impulsive too, क्योंकि समझ नहीं आ रही अपने एक्शन ले लिए, लेकिन बाद में सोचेंगे मुझसे चीज़ होगी है. सो दैट थिंग वाज हैपनिंग एंड वाई थिंग्स वर नॉट मेकिंग सेंस, बिकॉज वो एक मेडिकल मॉडल था. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट वी हैव टू सी अ साइको सोशल मॉडल, दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच. नॉट जस्ट you, your family, your upbringing, your education, your ethnicity, not on judgmental perspective, but it's going to matter a lot. तो how long did it take you to realize that in fact, एक तो कह रही ना आपने साइंस देखना शुरू किया कि these signs are within me. Did you self-diagnose or did you go to someone who diagnosed it with because, you? I'm a very active kid, let's say, always active kid in terms of playful when I was child. Later on जब वो कुछ issues start भी सी होते कि वो जो hyperactivity थी वो निकल नहीं रही थी, issue वहाँ से start होना शुरू हुए. But even then you somehow find a way कि walk कर ली, ये चीज़ कर ली, वो चीज़ कर ली. The point is that के my trainer, the moment I get into training, my trainer used to start calling me ADHD. मैंने कहा no, just making, you know, excuses for me, या मुझे target कर रही है, तंग कर रहे हैं, you know, like making fun of me, something like that. So I thought that is happening. But let's say मैंने कहा ठीक है, तो फिर क्या बात है, अगर कह भी रहे हैं तो, because everybody is in maybe in my surrounding, they're active. Maybe the woman in my family is active, they are active. What's active, sorry? Women, like खवातीन एक्टिव है, you know, active है. So that is a good thing, let's say. Okay, ठीक है. आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, जैसे मैं बोलती भी बहुत तेज हूँ अभी शायद. Somehow maybe I learn. Somehow I learn. No, yeah. but when I'm working again, you know, that's a therapeutic thing. Then my speed is different. Okay. When I'm talking, then when I'm doing speech therapy, that is a different space. You know, that is a different thing. So उस time again we have to learn that thing also. वो चीज़ें लर्न की हैं, उस टाइम हम डिफरेंट हो जाते हैं, एज अ वो एक रोल अडॉप्ट करते हैं. इट्स नॉट दैट कि मैं एक अलग बंदा बन जाती हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक दैट योर ऑब्जेक्टिव ओवर देयर, दैट इज अ डिफरेंट रोल. सीरियस रोल है, ऑब्जेक्टिव रोल है. यू नीड टू बी लिसनिंग टू द क्लाइंट, उसको कहीं जजमेंटल फील ना हो, उसको किसी आपकी बात से तकलीफ ना हो, सो दैट दे फाइंड अ सेफ स्पेस टू टॉक टू यू. बट बीइंग एफटी आई थॉट ओके, कभी वो नहीं है पावर पफ गर्ल, इफ यू नो अबाउट पावर पफ गर्ल्स. नॉट मच. वो एक जिसमें लंबे बालों वाली होती है. माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी समटाइम लाइक समथिंग लाइक दैट, कि आप वो हो. एक तो ब्लॉसम्स होती है ना जो बहुत स्वीट होती है, वो छोटे बालों वाली होती है ना, जिसकी पर्पल बाल होते हैं कि लंबे से, जैसे यू कैन सी दैट माय हेयर इज स्टिल लॉन्ग. बटरकप आई थिंक मेन वाली जो होती है, समथिंग लाइक दैट. सो yeah, okay. I don't remember. I'm not good with names actually. Oh, okay. It's very difficult for me to remember somebody names. Still it's a thing with me. I can remember your face, remember the detail. Like I remember my every client yet, जिसको मैंने देखा, जिसके साथ मैंने काम किया. देखूंगी तो मैं कहूँगी हाँ मैंने इसके साथ ये काम किया था. वो सारी जो है ना उसकी ये चैलेंजेस थे, उसको हमने ऐसा फेस किया था, इसको ऐसे हमने टैकल किया था. दिस इज व्हाट आई कैन डू, मे बी हैविंग द विजुअल मेमोरी. सो देन व्हेन आई सॉ इन माय सराउंडिंग दैट पीपल आर लाइंग, जैसे मैंने आपसे थोड़ी पहले भी बात की थी, दैट पीपल लाई अबाउट developmental disabilities या developmental disorders. People lie about autistic children and adults. Let's say adults के बारे में तो कहते हैं होता ही नहीं है ना. उनको तो लगता है सिर्फ बच्चों में होता है. उनको लगता है 18 साल के बाद खत्म हो जाता है. You know, this is what they think. And everybody is talking about children. फिर उन्होंने एक money making business भी बना लिया. Therapies are very expensive. लोग इसलिए भी नहीं जा रहे. Therapies are expensive. लोग इसलिए भी डरते हैं डायग्नोज करवाने से कि आपने फिर पूरी लाइफ थेरेपी लेनी पड़ेगी, उसके बाद क्या होगा. और yet professionals are not telling you the reality. What autism is, what ADHD is, what developmental disabilities, or let's say developmental differences are. So why not? You know, I have something that I can sell. Why would I give the control of that thing in your hand? फिर कुछ कह लें कि हमारी थोड़ी ट्रेनिंग में भी कमियां हैं, हमारी एजुकेशन में भी कमी है. हमने तो let's say if I maybe new thing, I have to go out of there to learn those things. I have studied manuals, testing manuals पढ़े हुए मैंने. ठीक है. जिसकी बेसिस पे लोग टेस्ट करते हैं कि डिसऑर्डर होते हैं, डायग्नोज तो टेस्टिंग मैनुअल्स होते हैं हमारे. आई हैव लर्न दोस, आई हैव रीड दोस टेस्टिंग मैनुअल्स. ठीक है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द थिंग्स दैट आई डू. स्टिल आई विल डू दैट. स्टिल कभी कभार ऐसा भी होता है कि इफ आई हैव टू डू समथिंग आई विल जस्ट गो एंड आई विल रीड दैट. लोग कहते हैं नहीं आपको तो इतना टाइम है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट.
आई वुड लाइक टू डू दैट. मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें में जहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस के बेस से बात करनी हो, आई डोंट या आई माइट नॉट डू दैट, बट स्टिल आई रीड अ लॉट about maybe new things, what is happening, what is not happening, what are the laws. For example, I'm also doing advocacy, so उसके क्या laws चल रहे हैं, international laws क्या हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, because I'm with this community, researches क्या आ रही हैं, कौन सी चीज़ no है अब, what thing is big no in therapy, what is a trending thing, क्या चीज़ affirmative है, क्या चीज़ affirmative नहीं है. Basically आप कह रही हैं doctors up to date नहीं रहते. Yeah, they are not up to date. Maybe they don't want to learn also. Okay. Something like that is happening over there. And also they don't want to hand over the keys to you. Yeah. And also कि आप जो है ना समझ सकें. या मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं कि लेट्स से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ. When I was in my training, तो I diagnosed a child जिसकी intellectual disabilities थी, और वो कुछ disabilities ना बहुत apparent होती, because autism is non apparent ना, या hidden आपने बताया था. Invisible या hidden है, इसको hidden बोलते हैं, invisible बोलते हैं. So क्योंकि आपको देखने में बच्चा बिल्कुल लग रहा है कि वो सब कुछ परफॉर्म करे, पर उसको कैसे चैलेंज हो सकता है, यू नो, कैसे समझ नहीं आ रही इस जगह पे, कैसे सेंसरी ओवरलोड हो गया, कैसे हाइपर हो सकता है. फॉर एग्जांपल समटाइम अगर जगह जैसे फॉर एग्जांपल छोटी तो है लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं है, अगर लोग हो तो फिर मुझे यहाँ पे सफोकेशन फील होगी. सही. जैसे मेरा सांस बंद हो रहा है, अब दैट इज बिकमिंग फिजिकली डिस्कम्फर्ट फॉर मी. सो आई वुड लाइक टू मे बी हैव सम स्पेस. मैं बाहर चली जाऊँगी फिर वापस आऊँगी, आई विल हैव टू डू समथिंग लाइक दैट. सो वो चीज़ें जो है ना वो समझ भी नहीं आ रही, उनको बता भी नहीं रहे आपको. घर वाले भी एक झूठ सुनना चाह रहे, नहीं बच्चा अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, यू नो. फिर वो इसी वजह से लोगों ने इतनी अब्यूजिव वेज निकालने, फिर डिफरेंट तरह की चीज़ें निकालें कि ये करा ले तो बच्चा ठीक हो जाएगा, वो करा लो ठीक. फिर कोई थेरेपी टाइप्स निकाली कि ये करा ले तो बच्चा ठीक हो जाएगा. बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कि जस्ट लाइक फिजिकल सिम्टम्स, जस्ट लाइक फिजिकल डिसऑर्डर्स, वी आर मैनेजिंग दोज थिंग्स. यानी कि यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम. अगर आपके बच्चे को जो है ना सांस की प्रॉब्लम है, लेट्स से, आप बिल्कुल कंफर्टेबल है उसके साथ, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले रहे हैं, बट द मोमेंट यू गेट द आइडिया कि बच्चे को लेट्स से अगर बाकी नहीं है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी ही है. लर्निंग डिसेबिलिटीज आर द डिसेबिलिटीज और द डिफरेंसेस और इश्यूज जो कि आपको पढ़ाई के दौरान होते हैं, जिसमें प्रॉब्लम विद रीडिंग, प्रॉब्लम विद राइटिंग भी आता है, प्रॉब्लम विद मैथमेटिक्स भी आता है. ठीक है. सो और यार शायद आपने सुना, शायद आपने इसके बारे में ना सुना, लेकिन होते हैं हम बच्चे को नालायक कहते हैं. हम कहते हैं बच्चे को तो रीडिंग ही नहीं आती, बच्चों को स्पेलिंग की मिस्टेक्स आ रही हैं, कभी मार के उसको ठीक करवा देते, कभी खड़ा कर देते, बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा. बट दोज आर लर्निंग डिसेबिलिटीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं. कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता. वो उस मूवी में बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया था ना, तारे ज़मीन पर. बट इवन इट कुड बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टू. दैट वाज जस्ट वन एस्पेक्ट, जस्ट वन एस्पेक्ट. फिर भी इवन उसमें समटाइम ऐसा था कि द पर्सन इज क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दोज चैलेंजेस वो नहीं पढ़ पा रहा, यू नो, क्योंकि वो ट्रेडिशनल एक बना हुआ है ना सिस्टम पढ़ने का. बना वो आपको पता है, वो जैसे बैरक नहीं होती, फौजी बैरक होती है, बिकॉज हमारी एजुकेशन वहां से आई है ना, हमारी एजुकेशन वर्ल्ड वॉर 2 से आई है. तो वो एक सेट पैटर्न है, उन्होंने लोगों को ट्रेन करना होता था, पोस्ट कॉलोनियल बेसिकली हमारा जो है वो करना होता था. तो अभी तक वही चला आ रहा है, वही चला रहा है. वो आपकी इवन क्लास की सेटिंग भी वैसे ही होती है ना, मतलब डिसिप्लिन है. somebody is not okay with discipline, let's say. I think parents को क्यों इस चीज़ पे वो why are they very uncomfortable with something not being normal as they say mentally as opposed to physically. I think क्योंकि जो ये आपने जो बात की ना साइकोलॉजी की जो फील्ड है, थेरेपिस्ट की जो फील्ड है, वो इतनी एडवांस तो हो गई है, बट पाकिस्तान में उसका उस तरह से ट्रस्ट वगैरह नहीं बिल्ड हुआ हुआ, ये लोगों के सामने सक्सेस स्टोरीज नहीं आई हुई. You could say that because mental health as a whole is a stereotype in our communities. बिल्कुल. It's as a whole people don't want to say कि we even अभी तक कहते हैं कोई हम पागल थोड़ी हैं. Let's say अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि मैरिटल प्रॉब्लम मेरे पास आती है, मैंने आपको कहा ना कि I'm working with couple, I'm working with families. तो क्या पूरी फैमिली let's say I don't like the word पागल या I don't like the word के साइको है, क्या पूरी फैमिली साइको हो गई है? Let's say technically possible नहीं है. You know it's not possible. लेकिन नहीं आ रहे. अब for example maybe let's say I'm working with a couple जिनके कुछ रिलेशनशिप में इशू आ गया, लेट्स से, तो आई एम डीलिंग दैट थिंग. एजुकेशनल प्रॉब्लम जैसे मैंने बताई आपको, लर्निंग डिफरेंसेस की प्रॉब्लम बताई आपको. सो कितनी रेंज मैंने आपको बताई है. सो फॉर देम दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर. स्किज़ोफ्रेनिया इज समथिंग जिसमें आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और आप नॉर्मल नहीं हो सकते इन टर्म्स ऑफ बिकॉज आपका जहन ही उलट गया.
वो है ना, दीवाना कहते हैं। हाँ, जो मेडिकल, वो जिसको साइकेट्री की मेडिकेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल, यू नो दैट इज समथिंग लाइक दैट। हमारे माइंड में वो बना हुआ है 0 और 1, नथिंग इन बिटवीन। यस, नथिंग इन बिटवीन, यस, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया, हाँ, जो कि नहीं पता। और अगेन आई थिंक ना इसमें सक्सेस स्टोरीज हमारी नहीं है। आपने वो बात की ना सांस वाली, कि बच्चे को अगर सांस की बीमारी है, वी आर ओके विद दैट। व्हाई? बिकॉज वी नो इर्द गिर्द उसको भी है, दे आर फाइन, उनके पास ये है वो है, डॉक्टर ने इलाज वगैरह किया हुआ है, दे आर लिविंग अ रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ। बट इफ़ वी से कि अच्छा ये इस बच्चे में ये लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग स्लोनेस है, हमारे इर्द गिर्द कोई एग्जाम्पल नहीं होंगे जिसमें है एंड दे आर डीलिंग विद इट एंड दे आर फाइन, तो एकदम से पैनिक कर जाते हैं। अब क्या करें? अब क्या? हाँ, वो छुपा भी लेते हैं, स्कूल में डबल फीस दे दी, बच्चे को आगे कर दिया, बिकॉज़ दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी डील ऑन डेली बेसिस। या वो नहीं तो फिर टीचर ने खुद ही मिटा के ठीक कर दिया पेंसिल से, यू नो, और नंबर दे दिए। They don't want to deal with it. Yeah, they don't want to deal with it. और ये जिसमें आपको बताया थी, मैंने उनको बोला बच्चे को, वो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ, वो एपरेंटली नजर आता, बच्ची मूव नहीं कर सकती थी। That was a cerebral palsy case. Cerebral palsy is a condition when a child is being born, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे केसेस जो है ना चाइल्ड बर्थ के टाइम खराब होते हैं। That is a very important thing to understand. And I would like to, from this forum, I would like to tell people जिनको आइडिया नहीं है, whenever you are going to the hospital, why it's important to take the hospital appointments, वहाँ जाना ज़रूरी है, और आइडिया आपको होना चाहिए। समटाइम जब बेबी की बर्थ होती है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। आपने देखा होगा इंक्यूबेटर इसलिए बने होते हैं, अगर ऑक्सीजन 1 सेकंड के लिए ना मिली, आधे सेकंड के लिए भी वो होगी, बच्चे का ब्रेन छोटा रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जहन भी नहीं गई, जहन छोटा रह गया। अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक। हिज बेबी वॉज बॉर्न, और उसने मुझे ये बोला कि बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, थोड़ी देर ऑक्सीजन नहीं मिली, एंड नाउ वो बेचारा द किड इज़ हैविंग सीजर्स और काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। बट द पॉइंट इज दैट सिर्फ ये भी नहीं, अगर उसको इंक्यूबेटर में डाल दिया आपने, हमारे यहाँ इंक्यूबेटर भी नहीं है, यू नो दैट, यू हैव दिस आइडिया। अगर इंक्यूबेटर नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है। बहुत सारे केसेस तो ये भी है ना कि इंक्यूबेटर ही ख़राब है, या ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं है। Yeah. That's the condition of our hospitals. Even I'm talking about the private hospitals too, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। Sometime आपको होगा शायद आइडिया, वेंटिलेटर पे किसी बंदे को शायद 1 महीने के लिए रखा हुआ है, पैसे चार्ज करने के चक्कर में। मेरे मामू को अभी 2 महीने रखा था, and he passed away. And the point is that कि आपने whatever the medical things are, but the point is अब उनको मैंने कहा कि the child is having intellectual disabilities, बच्चे की भी ठीक नहीं होगी। उस टाइम तो चिप होकर चली गई, तो जिन्होंने रेफर किया उनके घर पहुँच के उन्होंने उनसे इतनी लड़ाई की, एंड देन she said that मैं तो पूरी ज़िंदगी उनके पास कभी नहीं जाऊँगी। अच्छा। Yes, and मेरा जुर्म शायद था, मैंने उनके साथ सच बोला था। That was my जुर्म at that time. And वो कहीं और गई हैं, और वो बड़ा अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन था, बंदी बाहर से पढ़ के आई हुई थी, उन्होंने उनको बोला आपकी बच्ची 1 साल के अंदर भागना शुरू कर दे। And I'm talking about physical disabilities. Physical disability in terms of a child is ज़मीन पे मतलब यूँ लेटा हुआ है, मतलब जिसने एक हमारी डेवलपमेंटल जैसे माइलस्टोन की मैंने बात की, तो क्रॉलिंग और बैठने का डेवलपमेंटल एक माइलस्टोन है ना, गर्दन उठाने का, वो गर्दन नहीं उठा पाती। गर्दन उठाने का पहला होता है, लेट्स से गर्दन मूव करने का, उसके बाद उठने का, बैठने का, क्रॉल करने का, फिर वॉक करने का, फिर भागने का होता है। दीज आर फिजिकल डेवलपमेंट माइलस्टोन, ठीक है। वो उसने उनमें से किसी पे भी नहीं थी। वो कहती है 1 महीने के 1 साल के अंदर वो ठीक हो जाएगी, वो चली जाएगी। अब बिलीव करें 1 साल बाद वो और उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी लेट से रिजेक्ट कर दी। वो कोई और रिपोर्ट उन्होंने बनाई, बड़ा कुछ किया, और वो 1 साल तक वहाँ जाती रही है। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी पैसे भी दिए, और अच्छा खासे पैसे दिए। 1 साल के बाद बच्ची, तो बच्ची के हाथ ऐसे थे, सेम मतलब नहीं देखिए, ऐसे होने का मतलब मैं अब हाथ मूव नहीं कर सकती, ऐसे हो गया, ऐसे से ऐसे हो गया, मींस दैट अच्छा उंगलियां भी मतलब इफ आई वुड हैव वर्क ऑन द फिजिकल साइड ऑफ दैट, या हम उसके ऊपर हमने ओटी की होती, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की होती, या फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी की होती, तो एटलीस्ट वो चम्मच से खा तो सकती थी ना। आपने वो चांस भी खत्म कर दिया, सही, बिकॉज ऑफ द मनी, जो मैं आपसे पहले भी कह रही थी। सो दैट मनी मेकिंग माइंड, इनह्यूमैनिटी होना लोगों के अंदर, ये भी एक रीज़न है जो लोग पीछे हट जाते हैं कि हमें इतना महंगा इलाज करवाना पड़ेगा, उतने अर्से तक इलाज करवाना पड़ेगा। तो दिस आर सर्टन थिंग्स दैट वाई पेरेंट्स आर अफ्रेड ऑफ दोज थिंग्स। और कुछ स्कूल्स हैं कि नहीं बताते, जैसे फॉर एग्जांपल जो चीज़ें होती है ना, लैंग्वेज के इशू, लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिफरेंसेस के इशू, ये जो मॉन्टेसरी क्लास होती है उसमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं। लैंग्वेज का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सकता है, अगर लैंग्वेज के इशूज़ आ रहे, इफ लेट्स इफ इट्स नॉट इवन इफ इट्स ऑटिज्म, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी में किसी ना फॉर्म में हो सकती है, रीडिंग में इशू हो सकता है, राइटिंग में इशू हो सकता है। अब आपको पता है मॉन्टेसरी में ये बच्चे सब चीज़ें करते हैं, सो उसमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती है, लेकिन स्कूल वाले नहीं बताते। अगर बताते भी तो पेरेंट्स बड़े वो होते हैं कि आपका कसूर है, आपका कसूर है। लाइक उसमें किसी का कसूर नहीं होता, हो सकता है कुछ उनकी डीलिंग इस तरह की हो, लेकिन दैट्स द रीज़न दैट वाई पेरेंट्स आर अफ्रेड ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, एंड वो स्कूल को चुप करके पैसे दे के बच्चे को आगे करते हैं। इशू आता है जब A लेवल O लेवल में बच्चे जाते हैं,
क्योंकि वहाँ तो अब इंटरनेशनल बोर्ड से वो करें ना, उसमें भी लोगों ने कुछ तरीके निकाले में कि दैट दे हैव दोस सर्टिफिकेट्स और समहाउ वो, लेकिन इतना नहीं वो चीज़ हो सकती। सही, इस तरह से है ना, बट this is what it is. Did that patient come back to you after a year? Yeah, I told you. अच्छा, तो फिर उस टाइम मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। very मतलब sad. मुझे एफर्ट्स, फिर समझे अगर पहले मुझे एफर्ट्स करनी होंगी 1 महीने में एक चीज़ लेकर आने के लिए, नाउ इट माइट टेक मी और फिजियोथेरेपिस्ट को शायद 5-6 महीने लगे उसके हाथों को मूव करने के, क्योंकि आपके मसल सख्त हो जाते हैं। बात सारी हम जैसे अपनी शायद शुरू में मैंने अर्ली इंटरवेंशन में बोला था, दिस इज़ व्हाट अर्ली इंटरवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है अर्ली इंटरवेंशन के दौरान, कि आप जो गैप्स आ रहे हैं बाकी बच्चों के साथ वो आप अर्ली कवर कर लेते हैं। सही, तो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपकी जर्नी बीच में रह गई। वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ you could say finalized या you came to this conclusion अच्छा कि आपका भी this is the case. because I was saying कि वो I was studying different things. लोगों को, क्योंकि हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, आपने शायद प्रोफेशनल वाला क्वेश्चन किया भी मुझसे उसके बाद ही था कि प्रोफेशनल क्यों नहीं कर रहे इस तरह से चीज़, मैंने उसके बाद ही किया था। So when they were saying wrong, और जब उनको जवाब में आपको पता, लोग तो माइंड करते हैं that why you said this, how could you said this, and stuff like that. So what a person can do if you are doing something on social media, they can block you, they can delete your comment, they can report your pages. This is what they do. And there was certain other things was also happening, that people were using my name actually, and they were okay, let's say if you use my name and you make money out of that, ठीक है आपकी मर्जी, आप इसको करें, लेकिन those were not good people in terms of working. उनके काम ठीक नहीं था. So that was the reason that I need to tell people that who I am. And sometimes people know more about you other than you know about yourself, because they are afraid of you become something else, जो किसको मैच नहीं कर सकते होंगे. So when they were doing those things, when they were deleting my comments, I got very furious on that. Like, or sometimes they would fight with me also, कि आप ये करिए वो करिए. मैंने कहा okay, let's see what I can do. यानी कि why I'm going to consume my energy over here, why not I consume my energy in giving the awareness. So that's how my online journey started. Online काम तो मैं 2018 से पहले से कर रही हूँ, ठीक है, but talking about different things, then I started Facebook live and doing other things, Insta live हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, and then I was studying. तो मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ूंगी पहले, फिर बाद में काम करूंगी, like I will not do something unprepared. यहाँ तक आपने सेल्फ डायग्नोज नहीं किया था? नहीं, इस वाइट आइडिया था मुझे. अच्छा, ठीक है. I have the idea, but conclude नहीं किया था. That I am different. Okay, ठीक है. I am different. I am not like other people because of the certain issues. Let's say socialization का issue हो गया, बाकी understanding का issue हो गया. इतना understanding not in terms of because I am not a dumb person. Let's say ये dumb पता नहीं word use करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. But somehow my energy was not comfortable for people. I was intimidating for them because of maybe I was hardworking. If somebody have talent, let's say, or if they have something, if they are not utilizing that, so I didn't get the idea that why people are getting intimidated with me. So बाद में समझ आया कि न्यूरोटिपिकल सोसाइटी आपको समझती नहीं, उनको समझ नहीं आती, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं, या आपकी हार्ड वर्किंग सेंस या आपका स्पेशल इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट जो होते हैं जिसको आप परस्यू करते हैं और आपके अंदर एबिलिटीज है कि आप उसको गेट भी कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू. सो वो फिर उनके लिए इंटिमिडेटेड होता है, एंड समहाउ दे फाइंड सम रीजन टू गेट बैक नॉट विद यू, या आपको सोशली साइड पे कर दिया, सोशली आइसोलेशन में डाल दिया. सो व्हेन आई वाज रीडिंग द रिसर्चेस, दैट्स हाउ आई गेटिंग द आइडिया, बिकॉज उसमें देयर वाज अ रिसर्च स्पेसिफिकली अबाउट गर्ल्स, कि वो माइंड कैसे काम करता है. लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लड़कों का काम करता है, तो जो ऑटिस्टिक गर्ल्स होती हैं उनका माइंड लड़कों की तरह काम करता है, अच्छा, या दैट इज समथिंग लाइक दैट. मतलब लड़कियों का और लड़कों का माइंड डिफरेंट है, ऑटिस्टिक का, लेकिन ऑटिस्टिक का माइंड जो बाकी न्यूरोटिपिकल बॉयज है सम हाउस की तरह काम करता है. देयर वाज सम रिसर्च ऑन दैट. फिर दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस फॉर मी, बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट मोर रिसर्चेस. सो मैं बेसिकली वो अवेयरनेस के लिए कर रही थी, बट आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट. एक्चुअली माई फर्स्ट टॉक व्हेन आई वाज डूइंग, आई डिडंट, एकदम से मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी कि पता नहीं क्या बोल, बट आई जस्ट कंटिन्यू दैट फेसबुक लाइव फॉर 1 hour एक्चुअली. सो then I get the idea कि yes there is something, yeah there is. Then I reach international community, फिर वो पूरा एक प्रोसेस चला उस तरह से, तो फिर वो हुआ है. अच्छा, आपकी बातों से ना मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स याद आए हैं जिनमें कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं. लाइक there was a friend in university who was very intelligent, topper type था, very creative, great in making, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है ना, तो वो डिज़ाइन में बहुत अच्छा था, बहुत टेक्निकल. तो उसका क्या होता था, उससे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ तो वो उधर देख रहा है, मैं उससे बात करूँ, मैंने 3-4 बातें कर दी और वो उधर देखे जा रहा है. तो ही हैड अ क्लोज फ्रेंड जिसने मुझे थोड़ा समझाया. तो मैंने कहा कि इसको क्या हुआ है ना, तो उसका दोस्त कहता है कि अभी आएगा वापस.
एंड आफ्टर 10 सेकंड वो वहाँ देख रहा था, 10 सेकंड बाद उसने मुझे यूँ देखा एंड ही आंसर्ड ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस, और जो वहाँ पे जो था वो भी सारा उसने जो करना था कर लिया था. टू पे कंसंट्रेशन बिकॉज आई कांटेक्ट इज इंटिमिडेटिंग, आई कांटेक्ट इज पेनफुल. अच्छा अच्छा सही. तो तभी मैं कहीं आई कांटेक्ट लोग फिर जबरदस्ती करते भी कुछ थेरेपीज में ना कि आई कांटेक्ट नहीं दे, आई कांटेक्ट नहीं दे, आई कांटेक्ट इज पेनफुल. आप एक सम टाइम एक साथ बहुत सारे सेंसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो आई विल जस्ट क्लोज माई आइज और फिर मैं सुनूंगी. अभी तो खैर मैं देख रही हूँ आपको, मैं भी थोड़ा बहुत है कि मैं विजन पे ब्लर है तो इतना आई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता. बट also there's a vision blur is also a sensory thing, but yeah, that is there. And I think it's not necessarily eye contact. उसका ये था कि हम उसका मजाक बनाते थे कि तुम ना जैसा कंप्यूटर का रैम होता है ना वो बैकग्राउंड में स्टोर कर देता चीजें. It's more like, let me tell you one thing. जो हमारा माइंड है या let's say my mind, that is more like working like a web. So if you will ask me question, अगर आपने देखा मैंने आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट करके बताई हैं. I'm not just talking in a monotonous way. I am talking to you about so many things. डिफरेंट चीज़ें, लेकिन हर चीज़ कनेक्ट हो रही है और आपको समझ भी आ रही है उस चीज़ की कि हाँ ये चीज़ इस तरह से हो सकती है. लाइक माई टॉक इज़ नॉट आपके ऊपर से नहीं गुजर रही होगी, आपको समझ भी आ रही होगी कि क्या किस तरह से सेंस कर, जैसे अभी आपके जहन में ये चीज़ आई है. सो इट्स मोर लाइक माई माइंड इज वर्किंग अ वेब कनेक्टेड होता है. इंटरेस्टिंग. अच्छा, a few years back वो जो हमारा तो नहीं है, Elon Musk, the head of Tesla and all, he came out with that he is autistic. Asperger's syndrome. Asperger वो हाई फंक्शन को कहते हैं, या वो Asperger उन्होंने कहते हैं बड़ा वो, बट इट इज मोर लाइक ऑटिज्म विद ऑटिज्म. ओके, या इट इज ऑटिज्म. ठीक है. So it's not about competition कि किसी का कम है किसी का ज़्यादा. चैलेंजेस हो सकते हैं किसी की स्किल्स, बिकॉज इट्स मोर लाइक जैसे आप ग्राफ्स बनाते हैं ना, व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यू आर इंजीनियर, लेट्स से आप एक सेल का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ यूं होता है. तो इट्स आल्सो लाइक दैट. इन वन पर्सन एक चीज़ ज़्यादा होगी, एक चीज़ कम होगी, एक चीज़ ज़्यादा होगी, एक चीज़ कम होगी. अच्छा, सो दैट्स समथिंग लाइक दैट. सो एक के सेंसरी नीड्स एक तरह की, दूसरी की सेंसरी दूसरी तरह की होंगी. एक एरिया स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा एरिया स्ट्रॉन्ग होगा. सही है. So it's more like that. ठीक है. So that got me thinking basically कि since he's considered a mastermind, बहुत intelligent, इतनी चीज़ों में घुसा हुआ है, innovative. तो do people who are diagnosed with autism, can they use this to their advantage in day-to-day life? It's about that. That's the reason that why many people would be dysfunctional, that they don't know how to do that. या वो उनका जो इंटरेस्ट है ना वो अलाइन नहीं हो रहा. Okay. या उनका इंटरेस्ट जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या वो अपनी बाकी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे. इश्यूज जो आते हैं ना, लेट्स से व्हाट कुड बी द इशू इज, लेट्स से वी वर हैविंग दैट एक इंटरनेशनल, हम लोगों का डे बिफोर दिस वी हैव इंटरनेशनल मीटअप्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. किसमें? ऑर्गेनाइजेशंस में. अच्छा, ठीक है. एंड मैनेजमेंट में क्या इश्यूज आते हैं, मैनेजर्स के साथ क्या इश्यूज आते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इफ आई एम वर्किंग एंड मैं आपको इतनी चीज़ें बता रही हूँ और 3-4 और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हों, आपको क्या लगता है उनको मेरी बातें अच्छी लगेंगी? लाइक जस्ट एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव पूछ रही हूँ मैं. जो बीच में हमने की थी वो वाली तो नहीं. दैट इज अ पॉइंट. लेट्स से अभी मैं कहती हूँ कि लेट्स से यू डिड नॉट टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स दैट आई हैव. कुछ को पता हो, कुछ क्या पता सबको ही पता हो. तो डू यू थिंक दैट दे वुड लाइक समबडी जिसके इतना कुछ कर गया या कर रहा है किसी भी तरीके से, और ये नहीं समझ आ रही है मैं कितनी में एफर्ट्स डाल रही हूँ, कितने मेरे आवर्स जा रहे हैं, कितनी मेहनत जा रही है. दे विल नॉट कंसिडर दैट. इवन देन इट वुड बी इंटिमिडेटिंग फॉर देम, यू नो. सो दैट इज समथिंग लाइक, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, तुम्हें बड़ी जल्दी है काम करने की, तुम बड़ी तेज हो, लेट्स से, एंड दे आर नॉट सेइंग दैट के मे बी द वर्क इज द ओनली वे दैट आई एम एबल टू मेक द सेंस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज अदर थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस अराउंड मी, यू नो. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड मी. Yeah, there's many things that are happening that I'm not able to do maybe those things. You know, maybe I'm not interested in doing those things. But that might be something that I'm interested in doing that. Yeah, maybe that's also a way that I'm helping the whole international community because I'm working globally. So that is giving me a strength. And also, let's say, when the work that I'm doing, it is creating difference in a positive in life, people life. Not just in one way, but in many ways. In all around the world, let's say. So that is enough drive for me to go forward. अब जब मेरी थिंकिंग इस तरह की है, और लेट्स से XYZ, आप कितने लोगों को जानते होंगे, भी आपने बहुत सारे थेरेपिस्ट से बात भी की होगी, डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा. इट्स नॉट कि मैं बहुत कुछ जानती होंगी, बट द वे दैट यू आर वर्किंग एंड द वे दैट दे आर वर्किंग, सो इट कुड बी इंटिमिडेटिंग फॉर देम इफ इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन. उनको इशू हो सकता है इन चीज़ों से, होता भी है, यू नो. सो द थिंग दैट इज़ माई मे बी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो उनके लिए जेलसी का बायस हो सकती है, वो उनके लिए नेगेटिविटी का बायस हो सकती है, वो उनके लिए डिस्कम्फर्ट का बायस हो सकती है. या वो फॉर एग्जांपल मैं
एक आपने मुझे पूरी पेज दिया पढ़ने के लिए, मैं सब चीज़ें पढ़ के उसकी डिटेल्स में जा रही हूँ, बिकॉज ऑफ माई ब्रेन, बिकॉज ऑफ माई न्यू डाइवर्जन ब्रेन, दैट इज़ माई नीड. आई कैन नॉट से समथिंग अंटिल आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, और वो ऊपर ऊपर से बता रहे हो आपको, हाइपोथेटिकल चीज़ें बता रहे हो, तो अगेन दैट वुड बी इंटिमिडेटिंग देम थिंग फॉर मी. तो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. राइट, यू नो, सो वो फिर उनके लिए भी, उनके उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको. कभी कभार मैनेजर्स वुड से दैम, आपको बड़ी जल्दी है, आपको बड़ा सब पता है. फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियरिंग ब्रेन जैसे आपने बात की है, वो आपको एंड भी बता सकता है कि एंड में ये चीज़, बिकॉज ऑफ यू नो वो वर्किंग लाइक वेब है ना, तो पूरा एक प्रोसेस जहन में चल रहा है. जैसे आपने भी अपने दोस्त की एग्जाम्पल दी है कि उसने आपको हर सवाल का जवाब दिया है क्योंकि उसका ब्रेन काम कर रहा था उस तरह से. सो दैट इज व्हाट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम नहीं करना चाहती या जो कि झूठ बोल रही है, यू नो. सो दैट इज समथिंग दैट कैन, या फिर बाकी लोग, सियासत स्टार्ट हो जाती है, सियासत में डाइवर्जन पीपल को थोड़ी समझ नहीं आती, यू नो. सो वो फिर प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं. बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम से जाते हैं, फिर अपनी यूज से चले जाते हैं. तो एज आई अंडरस्टैंड कि एक ऑटिस्टिक पर्सन को दे शुड फाइंड देयर इंटरेस्ट एंड वर्क टुवर्ड्स देम, या फिर अपनी जो मैनेजिंग वो है ना स्टैंडर्ड चीजें. आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टिमिंग. Stimming is somehow that can make you comfortable in certain places. Yeah, the way that you are managing yourself. That is important for you to learn. For example, I learned so many ways to make myself comfortable. या make myself functioning, कि मैंने functioning कैसे करनी है. वो काम, सेल्फ के ऊपर काम, ऐसे नहीं कि मैं आउट ऑफ द वे थेरेपिस्ट बन जाता है कोई. It's never like that. You might have seen people who might have done, पता नहीं क्या पोस्ट जॉब भी शायद किया हो जिस तरह से, लेट्स से, और उनकी शायद लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो ना हो जैसे किसी और बंदे का हो सकता है. So the first hand experience that you have, because I have experience in field, or for example if you are an engineer, आपका experience है, तो that's how you are dealing in Europe, let's say. अगर आप fresh graduate हो या फिर आपने international market में काम ना किया तो फिर आप नहीं कर सकते. So the thing that I am able to do, या the thing that a neurodivergent person is able to do, he or she might have put 100 times more energy than a usual person जिसको 50 टाइम एनर्जी लगानी पड़ती होगी. Because it's not easy कि अपने mind को डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके काम करना. And you basically train them to do this? Your this is what we do actually. कि आपने अपने ही अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज क्योंकि देखें द थेरेपी इज नॉट कि आपने जो पढ़ी है वही होगी. अब इफ आई एम वर्किंग विद 10 पीपल, तो 10 के 10 डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं. सो आई नीड टू टेल देम सर्टन थिंग्स जो कि वो कर भी सकते हों. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट एबल टू मे बी राइड एरोप्लेन, और एरोप्लेन से हवा पे आपको समहाउ एक सेंसेशन मिलती है, यू फील गुड कि आप फ्लाई कर रहे हो और आप लोगों से दूर है, कोई भी सेंसेशन हो सकती है ना. हाउ कैन आई आस्क यू टू डू दैट? लेट्स से हो भी सकता है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा आपको? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इतना टाइम लगा के उस चीज़ को लर्न करें? बेशक हो भी, बट एक एट हैंड आपकी एक प्रॉब्लम है, आपने उसको कैसे डील करना है, रियलिस्टिकली कैसे करना है ना. सो इट्स मोर, या इट्स अ रियलिस्टिक थिंग. And it's also practical thing too. We will go toward practical things. That is important. कि practically आप क्या कर सकते हैं. ठीक है. So that is the approach. Practical हो, to the point हो, here and now पे हो, लेकिन बैक में क्या चल रहा है आपने उसको भी importance देनी कि वो चीज़ है, किस तरह से थी, किस तरह से है, किस तरह से आगे तक जा सकती है. So that is something it is. So we basically need to give you, I basically need to give them the idea of their life, who they are, what they can do, what are their limitations. सही. what they can do to create certain things, या रिलेशनशिप में बाउंड्रीज कैसे बनानी है, सेल्फ को कैसे फोकस करना है. बिकॉज व्हेन यू आर मास्किंग, लेट्स से, तो यू आर गिविंग योर ऑल एनर्जी टू पीपल, बिकॉज इट इज आस्किंग यू टू सोशलाइज अ लॉट. व्हेन यू सोशलाइज अ लॉट, यू डोंट हैव फाइंड वेस्ट फॉर योर ओन सेल्फ, योर ब्रेन गेट्स सो कंज्यूम्ड. So there is a spoon theory in our that we use sometime, और एक folk theory भी होती है, but spoon theory is something like, let's say you have 10 spoon, या 10 cups of tea हैं, तो फिर आपने 10 के 10 में 10 ही स्पून डालने हैं. Okay. अगर आपने मतलब ये कि अगर आपने एक कप में 3 चम्मच डाल दी हो, ठीक है, और बाकी आपके पास 9 कप हैं और 7 चम्मच लेट से चीनी रह गई है, आपने दूसरी के अंदर भी 4 डाल दी हो लेट से, बिकॉज उस बंदे को मीठा ज़्यादा पसंद है. ठीक है. फिर आपके पास कितने चम्मच रह गए हैं? लेट से 4 और 3 रह गए. हाँ, 3 रह गए लेट से. और आपके पास कितने कप हैं? 8 कप. अब बताया आपने एनर्जी कैसे इसमें यूटिलाइज करनी है, थोड़ी करके. ठीक है. सो आपने हर जगह पे 1-1 चम्मच डालना है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सके.
तो आपने हर जगह इतनी इतनी एनर्जी देनी है। हर जगह मतलब आपके एरियाज ऑफ लाइफ ना 10 कप्स थे ना, तो मैं कप की एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो लेट्स से अगर आपने मुझसे अपनी लाइफ के बारे में पूछा तो फिर मैं सबसे पहले पूछूंगी अगर आपने काम ही करना है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रायोरिटीज की, क्या प्रायोरिटीज आपकी, और टास्क आपने समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, समझ नहीं आ एनर्जी कहाँ पे लगाऊं, तो सबसे पहले आपने वो टास्क करना होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, पहले आपने वहाँ करना है। उसके बाद आपने बाकी चीज़ें देखनी है कि 10 और चीज़ें उसके बाद आप देखेंगे, फिर कौन सी चीज़ कर सकते, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स हाउ यू प्रायोरिटाइज थिंग्स। फिर ये कि इम्पोर्टेंस कितनी है, कितना ज़रूरी है वो चीज़, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें करेंगे ना। ठीक है, ना कि ये कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, लेट्स से अगर आपको अच्छी भी लग रही है, मज़ा भी आता है उसमें, लेकिन आपने उसके चक्कर में अपने इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिया। एंड दैट इज़ नॉट अ जोक। लोग खाना भी छोड़ देते हैं, लोग खाना नहीं खाते, लोग 2-3 दिन खाना नहीं खाते लेट्स से, उनको समझ ही नहीं आती, वो इतने अपने फेवरेट एक्टिविटी में बिजी हैं। बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग योर पर्सनल लाइफ, मैनेजिंग योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस। वी कॉल दैट एग्जेक्टिव फंक्शन। एग्जेक्टिव फंक्शन आप बहुत पढ़ेंगे। तो ये तो ADHD के भी वो लग रहे हैं मुझे एलिमेंट्स इसमें ना। ADHD और ऑटिज्म जो है ना वो एक इसमें आ रहे हैं ना। अच्छा दे इंटरसेक्ट, दैट आल्सो वो मैं समझ गया, वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन है, दे नॉट द सेम थिंग बट कुछ कॉमनैलिटीज हैं। कॉमनैलिटीज काफी ज्यादा है, लेकिन सेपरेशन भी है, सेपरेशन भी, लोगों को दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा आपने मेंशन किया था आपको दोनों है। या सो इट्स अ वॉर बिटवीन ब्रेन समटाइम, सो एक दूसरे को बैलेंस करती है। अच्छा सो विद ऑटिज्म इट्स ऑल अबाउट रूटीन, विद ADHD इट्स नॉट रूटीन, दे कैन नॉट फॉलो रूटीन, दे कैन मेक प्लान्स और छोड़ सकते हैं। और फॉर मे बी फॉर ऑटिस्टिक पर्सन अगर आपने प्लान बनाया तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी उलट जाएगी। दैट इज समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग। ये तो ऑपोजिट चीजें कोएग्जिस्ट कर रही हैं, या कोएग्जिस्ट कर रही हैं, या फॉर मी इट इज ओके। सो इट्स लाइक अ बैटल इन योर माइंड, इट इज लाइक बेटर। अच्छा, इट्स अ बैटल, इट इज ऑलवेज बेटर। अच्छा नहीं, बेटर या बैटल। अच्छा इट्स अ बैटल फॉर यू, बैटल, इट्स ऑलवेज अ बैटल इन माय माइंड। अच्छा, तो यू मेंशन कि आपको रोबोटिक होना है एज अ थेरेपिस्ट, दैट्स योर जॉब, होना था, बट अब आप नहीं है। नहीं, अच्छा सही। डू यू हैव योर ओन थेरेपिस्ट एज वेल? इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट अ कोचिंग थिंग, दैट हाउ कोचिंग यू आर। बिकॉज आपने जैसे हमने वो हमारे ना सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसा एक पाकिस्तान का है या एक मेरा इंटरनेशनल है, एक ADHD के साथ भी है, वुमेन के साथ भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लर्निंग की थी वो थी कि वुमेन में चीज़ें डिफरेंट है। आई मीन द क्राइटेरिया दैट आर कमिंग टूवर्ड इज क्वाइट अ बॉयज क्राइटेरिया। हम लड़के को देख रहे हैं। अगर आप शुरू की रिसर्च पे कभी जाए, हो सकता है बाद में कुछ लोग पेरेंट्स देखें भी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, तो कहते हैं लड़के में होता है, लड़कियों में नहीं होता। बिकॉज गर्ल्स आर वेरी गुड इन मास्किंग, लेट्स से। ये सोशल बहुत ज़्यादा, हर एक से बात करना है, बात करनी है, मुस्कुराना है, डिमांड है ना उसकी, सोसाइटी की डिमांड है। या हमारे जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, कल्चर जिस तरह का है, आपने हर जगह हर एक के प्रेजेंट भी रहना होता है, यू नो। और एक लड़की सिर्फ लड़की नहीं होती, उसने घर भी संभालना होता है, उसने बाहर भी देखना होता है। चाहे आप जितने भी कैरियर फोकस हों, यू हैव टू गो बैक एट होम एंड डू सो मैनी थिंग्स। फिर शौहर का भी देखना, फिर बच्चों को भी देखना, लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो डिफरेंस वुमेन और मैन दोनों में है, उनकी वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड थिंग्स भी डिफरेंट है। इधर इट्स ADHD, इधर इट्स ऑटिज्म, सिम्टम्स भी डिफरेंट है दोनों के अंदर। सो उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी अलग है। फिर अगर हमने काम करना भी होता है तो फिर हमने ये चीज़ देखनी होती है कि वुमेन के अंदर क्या चीज़ें अलग हैं, उनके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन को प्यूबर्टी में चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की प्यूबर्टी में ही चीज़ें सामने आती हैं। लेट्स से किसमें, सॉरी? प्यूबर्टी। अच्छा, लाइक 12-13 साल के बाद, ठीक है। फिर मीनोपॉज का फेज आता है गर्ल्स के अंदर, उसमें डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपको अंडरस्टैंड करना होता है, राइट। एंड इफ यू से अबाउट रोबोटिक, when you're working, let's say if I talk about the brain that I have, it helped me focus actually. ये problem में focus रहूँ मैं। So फिर then I detach myself emotionally in terms of के उनके emotions से मैं affect ना हूँ। So that is a maybe blessing for me, because आप मतलब let's say अगर मैं दिन में 15 सेशन let's say करती हूँ, 15 लोगों का ट्रॉमा मैं हर रोज सुनती हूँ let's say, या 10 लोगों का ट्रॉमा है। So it takes a toll on you, ना? मतलब it can take, yeah, it takes also. Let's say that. So then I not just created places for myself, but I created those places for other people also. And जब मैंने आपसे बात की थी ना कि वो एक डिस्कशन का कि मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को एक थेरेप्यूटिक फेज से निकाल के कि अदर देन हु आई एम आफ्टर माई वर्क, दैट स्टार्टेड व्हेन आई गेट अ चांस टू नो। अब फॉर एग्जांपल अगर पहले मेरे शायद दोस्त ना होते, पूरी दुनिया मेरी दोस्त है, and they are just like family, they will just treat you like that. और वो वाम भी आपसे मिलेगी उन लोगों को तो शायद यहाँ पे दोस्तों से आपको ना मिल रही हो, because of you being different person. So these are the sad realities of the life, let's say. But the thing is that के
शायद कल परसों somebody asked this question from me कि क्या हुआ डायग्नोसिस के बाद. It's more like I find a new family, let's say. It was all over there. या हो या ना हो, you know. Even सब कल जब हम आपने जिस ट्रेनिंग की बात की तो वहाँ पे एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि लेट्स से डायग्नोस. मैंने कहा आपकी मर्जी अगर आप डायग्नोस नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट इज योर पर्सनल जर्नी ना. क्या क्वेश्चन था? डायग्नोस, अगर कोई बंदा डायग्नोस ना करना चाहे अपने आप को, उसकी अपनी मर्जी है फिर, बिकॉज दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग. इट इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. और आल्सो यू आर नॉट सपोज्ड टू, मे बी आपकी मर्जी, बट पीपल यूज दैट एज एन एक्सक्यूज. तो जो एज एन एक्सक्यूज यूज करे उसकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रप्शन उसकी अपनी लाइफ में आती है. यू नो, सो यू नीड टू बी having that kind of a thing in your life, and yet you have to go forward. So that is something like that. So we have those support groups वहाँ पे जाते हैं. We have created, maybe let's say I have created those things. थोड़ा अपनी तारीफ भी कर लेते हैं. Those places, support group for parents, बहुत ज़्यादा मैंने resources create किए हैं. You can just go and you can just find that on the net. बहुत different aspect और different level के. So it is also helping me and also helping other people too. I think it's more about accepting. जब आपका डायग्नोस हो तो यू एक्सेप्ट इट. पर्सनल एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी तो छोड़े ना, आप खुद कितना एक्सेप्ट करते हैं. एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद इट. वही जो आपने मेंशन किया, ये ना कि इसको एज एन एक्सक्यूज लेके बैठ जाए. अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी अपनी लाइफ देखें होगी. दैट इज द पॉइंट. यू आर जस्ट बिकॉज लेट्स से घर वाले कितना समझेंगे, बिकॉज दे आर नॉट दोस्त. लेट्स से शायद समझ भी लें, या आपके दोस्त नहीं समझ रहे हैं. व्हाई यू वांट देम टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट देम टू अंडरस्टैंड. लेट्स से यू नो what you want them to understand. कि आपको चलो ये इश्यूज है, वो आपके इश्यूज को नहीं समझ पा रहे. गो फॉर प्लेसेस जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकती है. गो फॉर दोज फ्रेंड्स. ऐसा नहीं कि एक दोस्त है 20-25 साल पुराना आपका दोस्त है और आपका डायग्नोज हो गया, उसने अगर आपको छोड़ दी तो फिर आप क्यों जा रहे हैं उसके पीछे. मे बी शायद आपको थोड़ी इमोशनल कोल्ड चीज़ लग रही हो, लेकिन जब आपको एक इमोशनल ट्रॉमा उससे मिल रहा है तो ये आपको हेल्प करने के बजाय ना आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है. तो अपनी सेहत को बचाएं, अपने आप को बचाएं, एंड फाइंड प्लेसेस जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकती है. So it's more like making those groups or making those places ताकि लोगों को समझ आ सके, you know. Right. That is what it is. So इसमें the treatment options that we have, other than ये जो आप बता रही हैं कि ठीक तरीके से diagnose करना, different aspects देखना, उस तरह से उनको फिर treatment and therapy देना, is there also the oral medicine aspect to it as well? कि is it mostly the therapy that we do? कि अगर देखें कोई मेडिकल कंडीशन होता है ना, चीज़ें आउट ऑफ द वे जाती हैं, तो उसमें हम थोड़ा कहते हैं कि बेसिकली आई डोंट नो व्हाट आई नीड टू से. और अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ, मैं क्या कहूँ कि मेरे क्लाइंट मेडिसिन नहीं लेते. दे आर नॉट ऑन मेडिकेशन. ओके. दे डोंट इवन नीड. मे बी जब उनको मैं कहती हूँ फिर भी वो नहीं जाते. सम टाइम वो मुझसे कहते हैं, मैं कहती हूँ इफ़ यू फील लाइक, तो इट्स अप टू देम. बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आपने सिलवेट से मेडिसिन ले ली है और वो आपको एक चीज़ सोशल ट्रिगर्ड चीज़ों से हो रहा है. अब मुझे यहाँ पे एक सेंसर इशू लेट से हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाइट्स बहुत लाउड जो मुझे अफेक्ट कर सकती है, लेट से बहुत ऊंची आवाज़ जो मुझे अफेक्ट कर सकती है. तो मैं दवाई खा के उसको कैसे ख़त्म करूँ, कितनी अर्से तक ख़त्म करूँ. So it's more like how to manage myself in that situation. So that's basically the vice symptoms management. Yeah, it's more about managing yourself. कि मैनेजमेंट पे काम करना है उसका. बिकॉज अगर देखिए, अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी भी है तो वो ट्रिगर्स आपके पास इन्वायरमेंट से आ रहे हैं. तो आप अपने जहन को इतना सुन कर देना चाहते हैं कि आपको समझ ही नहीं कि कल चल क्या रहा है. लेट्स से कुछ चीज़ों में चाहिए तो आई एम नॉट फाइटिंग विद दैट एस्पेक्ट, बट द पॉइंट इज दैट के यू हैव टू कम टू द सेम वर्ल्ड. जब हमने स्किज़ोफ्रेनिया की बात की तो उनको चाहिए मेडिकेशन ना, बिकॉज वो उनकी सेल्फ मैनेजमेंट ही नहीं है. उनको हेलोसिनेशन और डिलूजन हो रही हैं. उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, उनको कोई कत्ल कर देना चाहता है. वो इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं और लोगों को मारते हैं. यू नो, तो उनके तो रियलिटी कॉन्टैक्ट ही नहीं है. उनको तो सर्दियों में गर्मियों के कपड़े, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, नंगे पाँव फिरने हैं. सख्त सर्दी है या सख्त गर्मी है, सख्त गर्मी में उन्होंने स्वेटर भी पहनी हुई और चादर भी पहनी हुई है, या कंबल में आप उनको देखेंगे. दीज आर स्किज़ोफ्रेनिक पीपल. आपको शायद वो लग रहा है कि लोग नशा ही है. दीज आर स्किज़ोफ्रेनिक पीपल. सो दैट इट व्हाट इट इज़ टू हैव द. एंड आल्सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई शीशा से कहता है, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें कभी भी हो सकती हैं आपके साथ. You need to be very careful when you're doing those things, or when you are passing those comments. Yeah, so you need to be careful with that. So it's more about managing yourself, and if you don't have skill, we work on those skills. या let's say अगर एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने फादर से बात करने का, तो वो दवाई खिला के तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता ना. उसके तो उसको प्रैक्टिकल टेक्निक्स करनी पड़ेंगी. अपने आई रिमेंबर वन थिंग, आई वाज वर्किंग विद अ गर्ल, उसको कोई लड़का ब्लैकमेल करता था, एंड शी वाज
एट द एज ऑफ टेकिंग हर लाइफ. और व्हेन वी टॉक अबाउट द इवन आई रिमेंबर उसको ना सेशन में पैनिक अटैक, हालांकि सेशन इज अ काइंड ऑफ अ सेफेस्ट प्लेस फॉर समवन. अच्छा, उसमें पैनिक अटैक होता था? उसमें पैनिक अटैक्स आते थे उसको, आ रहे थे, बिकॉज वो बंदा उसको इतना तंग कर रहा था, उसको इतना ब्लैकमेल कर रहा था. एंड आई रिमेंबर कि मैंने उसकी बहन को उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि कुछ करे ना अपने साथ. तो वो बाथरूम भी जो है ना कुंडी लगा के नहीं जाती थी. मतलब ये मैंने कहा हुआ था कि आपने उसको इस चीज़ को मेक श्योर करने की कुंडी ना लगाए, कुछ करे ना अपने साथ में अंदर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द यू नो कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो हमने जो चीज़ें बताई उसके लिए शायद वो चीज़ें प्रॉब्लम थी, बट इवन देन शी डिड दैट. उसने उस चीज़ को ओवरकम किया, उस फेयर को ओवरकम करके उसने बात की अपने घर वालों से कि चीज़ मुझे मेरे साथ इस तरह से हो रही, वो चीज़ डील भी हो गई. फिर बाद में कहती है आई वुडंट बी फील्स द सेम. आई सेड दैट ये हो सकता है आपके साथ, बिकॉज यू नो वो इतना कुछ बीच में आई, इमोशनल चीज़ें बीच में आई हैं, और घर वालों के साथ जो भी हुआ है या आपने जो भी फील किया, बट लेटर ऑन यू विल गो थ्रू दैट, और शी वेंट थ्रू दैट. सही. यू नो, सो दैट वाज एफर्ट्स ओवर देयर, और वो उसकी एफर्ट्स थी, बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट यू आर जस्ट अ पैसेज वे, लेट्स से. करना तो उन्होंने खुद है, करना उन्होंने होता है. सो every day if something is giving me motivation is the people that I'm working with, and they are making me more proud. A child that I'm working with, वो बोलता है कुछ भी करता है, they are making me proud every day, and they are doing amazing work on daily basis. You know, आप सुबह उठते हैं ना और कुछ भी करते हैं तो आप खुश हो कि आपने चीज़ की है. ये कोई आम सी चीज़ नहीं है. जैसे मैंने कहा ना कि वो जब इतने एक्साइटेड होते हैं वो खाना ही भूल जाते हैं. You know, I remember I was talking to one mother, उसने कहा कि आज मेरी बेटी ने 2 दफ़ा खाना खाया, and she was so happy on that. वो क्योंकि उसकी बेटी खाना नहीं खाती थी. माइलस्टोन है ना उनके लिए, वो इनके लिए माइलस्टोन है. लेट्स से आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड और वो च्यू नहीं कर सकता था. कैन यू इमेजिन कि मेरे घंटे उसको ना सिर्फ च्यू सिखाने में लगे थे, बिकॉज आई एम स्पीच थेरेपिस्ट ना, तो हमने वो ओरल थेरेपी करनी होती है. तो बबल के थ्रू स्टार्ट किया, कैंडी के थ्रू, जिस चीज़ के भी थ्रू स्टार्ट किया, समहाउ ही स्टार्टेड वो च्यू करना. अब आपको लगता है एक बच्चा बिल्कुल ठीक, वो च्यू क्यों नहीं कर पा रहा? हाउ ओल्ड वाज ही? वो बिल्कुल सही था. उसके फिजिकल माइलस्टोन उसने बड़े टाइम पे किए थे, लेकिन उसको ना खाने का टेक्सचर पसंद नहीं था. अच्छा. तो उसको उसके साथ अपने फेमिलियर करवाना था. सो फर्स्ट दिस इज व्हाट आई डिड. देन उसकी किसने ये उसको समझ नहीं था कि मैंने खाना चबाना भी होता है, क्योंकि उसको जब वो छोटा था तो या वो उसको चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें ले रहा था. सही. तो लिक्विड फॉर्म में तो जस्ट अपने वो सकन करना होता है ना, आप चबाते नहीं है. तो उसको ये कैसे पता चले मैंने खाना चबाना भी है, बिकॉज वो अपने थॉट्स में इतना मगन है कि वो मुंह के अंदर नवाला आधे घंटे मुंह के अंदर नवाला है. तो वो यूं करना, जैसे फॉर एग्जांपल. एंड कुड ही स्पीक? इस एज में था? अच्छा, ही कुड स्पीक. ओके. तो उसने रीडिंग भी स्टार्ट कर दी थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम. तो उसने रीडिंग भी शुरू में तो वो जस्ट उस पे था, जिब्रिश थी उसकी. अच्छा. सो इट्स लाइक उसमें भी एफर्ट्स जाती हैं ना उसमें. लाइक यू आई वर्क विद पीपल जिसके शायद बिल्कुल साउंड ना हो, तो साउंड भी आते, फिर रीडिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं. दैट्स ऑल एफर्ट्स आर गोइंग, दे आर मेकिंग एफर्ट्स, वी आर जस्ट पुटिंग आवर एफर्ट्स इनटू देम. वे खुद एफर्ट्स कर रहे होते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल अब देखें, अब उसमें ये हुआ कि वो खाना शुरू हुआ, तो मैंने कोई पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने कुछ चीज़ वीडियो लगाई, उसमें किसी ने कमेंट किया कि ये आप सही नहीं कर रही, बच्चों को ऐसे नहीं कहना चाहिए, बच्चों को यूँ नहीं करना चाहिए, और फोर्स मतलब जो वट एवर शी वॉज सेइंग दैट. उसी मदर ने बोला क्या आपको पता है कि क्या पता कोई बच्चा 5 साल तक खाना ना खा सकता हो. दैट वाज द मदर ऑफ दैट चाइल्ड एक्चुअली. ओह, ओके. और बताएं फैमिली के लिए कितनी खुशी की बात है, वो ये कहे कि मेरे बच्चे ने आज खाना खाया, चबा के खाया, रोटी खाई है, लेट्स से. सो जो चीज़ आपको शायद खाना ऐसे छोड़ रहे हैं ना, आप उस मदर को देखें जिनके पास शायद दुनिया की हर नेमत है, बाहर भी रहते हैं, दे हैव मनी, दे हैव एवरीथिंग, बट दे आर हैप्पी बिकॉज देयर चाइल्ड वाज चूइंग समथिंग, या बच्चे ने बनाना पील करके खाना खाया, एंड दैट इज अ स्किल. कि वो पील करके चबा के बनाना खा रहा है, क्योंकि उसके सेंसरी इश्यूज थे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द सेंसरी सेंसिटिविटी यू हैव. तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टच सर्टन थिंग्स, यू कैन नॉट स्मेल सर्टन थिंग्स, लेट्स से. वो आपको अनकम्फर्ट करती हैं, आपके एग्जेक्टिव फंक्शंस को वो चैलेंज कर सकती हैं, आपके मतलब आपको इवन मेल्ट डाउन दे सकती हैं. मेल्ट डाउन इज काइंड ऑफ इमरजेंसी, जैसे पैनिक अटैक्स होते हैं ना, ऐसे मेल्ट डाउन भी होते हैं. एंड वो बच्चा ज़मीन पे लेट जाएगा, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने आपको ज़मीन पे पटकाएगा, बहुत कुछ हो सकता है. टेंट्रम जिसको बोलते हैं बेसिकली, जिसको हम टेंट्रम्स कहते हैं, या टेंट्रम्स कहते हैं. तो वो एक शायद वो टेम्पर टेंट्रम जिसको हम ये वर्ड उसके लिए यूज़ होता है. तो उसमें वो चीज़ें बच्चा कर रहा होता है. तो टेम्पर टेंट्रम थोड़ा बहुत नेगेटिव सा वर्ड हो जाता है कि टेम्पर्स हैं इसकी, हम नेगेटिव उसमें कहते हैं कि इसके टेंट्रम्स शो कर रहा है, गुस्से में शो कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट कि बच्चा जो है वो फिर अपसेट जब होते हैं तो वो काफ़ी टाइम के लिए बच्चे अपसेट रहते हैं. So you need to be very careful. Do not try to lie with your child, क्योंकि उनको बात याद रहती है. आपने जो कहा आपने वो चीज़ पूरी करनी होती है, या फिर आप ना कहें.
So that is all about that. But whatever we are trying to do is about giving them skills. Yeah, helping them to learn that skill. And that is working for them. Excellent, excellent. Well, Dr. Neela, it was great having you. And I'm sure everyone who has been watching till the end, kuch na kuch to unhone isse they'll take back after listening to our conversation. And for everyone who is still watching, thank you so much for watching till the end. We'll see you in the next episode of the NSGT show. This is Noroz signing out. Allah Hafiz.